Whenever someone practices tarot, astrology, whether it's Vedic or Western, numerology, palmistry, or any other spiritual discipline, I believe there is a responsibility that comes with that role. In many ways, people work in these fields, act as guides and healers. And when someone comes to us for guidance, they are often in a vulnerable place. Many of the clients who approach spiritual practitioners are not simply curious about the future. Often, they are dealing with deep emotional struggles, confusion, anxiety, depression, or personal crisis. They come to us because they are searching for clarity, reassurance, or direction in life. Sometimes, it becomes very clear that the person sitting in front of you is not just looking for spiritual insight. They need real psychological help. Even someone without a formal background in psychology can sense when a person is deeply distressed or struggling in ways that go beyond what a tarot reading or astrological guidance can provide. When I encounter situations like this, I feel it is my responsibility to guide the person towards professional help. I often suggest that they consider speaking with a psychiatrist, therapist, or a counselor. At the same time, I try to reassure them that seeking help for mental health is not something to feel ashamed of. Going to a therapist or psychiatrist does not mean a person is crazy or insane. In reality, it is the opposite. It means the person is taking responsibility for their own well-being. It means they are brave enough to face their struggles and seek support. When someone chooses to take care of their mental health, they are not only helping themselves, but also protecting the people around them for the ripple effect of untreated emotional pain. Unfortunately, not everyone in spiritual communities follow this ethical approach. I have observed that some practitioners notice when a client is vulnerable, emotionally fragile, or desperate for answers. Instead of healing them in a healthy way, they exploit that vulnerability. They prolong readings unnecessarily, create fear, or convince the client that they must continue paying for more services in order to fix their problems. This kind of behavior is deeply troubling. If someone claims to be a healer, whether through tarot, astrology, energy work, or any other spiritual practice, then their first responsibility should be the well-being of the person seeking guidance. Taking advantage of someone's pain or confusion for financial gain is not just unethical, it is immoral. Of course, money is an important part of any profession. Spiritual practitioners deserve to be compensated for their time, knowledge, and effort. But financial gain should never come at the cost of someone else's vulnerability. Personally, I may earn less by choosing to be honest and ethical with my clients, but I find peace in knowing that I am helping people in a genuine way. Instead of trapping them in dependency, I try to guide them towards healing, clarity, and empowerment. To me, that is what true spiritual practice should be about. Helping people reconnect with their own strength and ability to heal. I feel grateful that I approach this work with this mindset. And I hope more practitioners in spiritual communities will choose to prioritize ethics, compassion, and responsibility over profit. Because at the end of the day, guidance is not just a service, it's a position of trust. And trust should never be exploited. चाहे कोई टैरोट प्रैक्टिस करता हो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल फील्ड में हो, मुझे लगता है कि इन सब ज्ञान के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बहुत बार जो लोग हमारे पास आते हैं वो सिर्फ क्यूरियोसिटी से नहीं आते, अक्सर वो इमोशनली वल्नरेबल होते हैं।
वो अपनी लाइफ के डिफिकल्ट फेज में होते हैं और गाइडेंस ढूंढ रहे होते हैं। कई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते वक्त क्लियरली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, इमोशनल पेन या लाइफ क्राइसिस। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ साथ उन्हें प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल हेल्प की भी जरूरत होती है। इसके लिए साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। कई बार एक नॉर्मल इंसान भी देखकर समझ सकता है कि कोई पर्सन डीपली स्ट्रगल कर रहा है और उसे प्रॉपर हेल्प की जरूरत है, कि भाई इस इंसान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, वो नॉर्मल नहीं है। ऐसे सिचुएशंस में मैं यूजुअली क्लाइंट्स को जेंटली रिकमेंड करती हूँ कि अगर पॉसिबल हो तो थेरेपिस्ट, काउंसलर या साइकाइट्रिस्ट से बात करें। और साथ ही मैं उन्हें ये भी समझाती हूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेना कोई शेमफुल बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। थेरेपिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब ये नहीं है कि आप क्रेजी या इंसेन या पागल हो। एक्चुअली इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। इसका मतलब है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और ये वीकनेस नहीं, ये एक स्ट्रेंथ का साइन है। जब कोई पर्सन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता है तो वो सिर्फ खुद का ही नहीं, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख रहा है, क्योंकि आपके आसपास में आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके बच्चे, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो वो सब इफेक्ट होते हैं। तो जब आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे होते हो तब आप उनका भी ख्याल रख रहे होते हो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने से। इसलिए जब आप अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हो, उसका ध्यान रखते हो, तो आप इनडायरेक्टली अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, बच्चों और जितने भी आज आपके आसपास के लोग हैं उनका भी इनडायरेक्टली आप ख्याल रख रहे हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पिरिचुअल कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते। मैंने देखा है कि कुछ प्रैक्टिशनर्स जब किसी वल्नरेबल पर्सन को देखते हैं तो उस वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं। वो क्लाइंट्स को अननेसेसरी डराते हैं या उन्हें कन्विंस करते हैं कि उन्हें बार बार रीडिंग्स करानी पड़ेगी और ज्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरे हिसाब से ये सिर्फ गलत ही नहीं, ये इमोरल है। अगर कोई खुद को हीलर कहता है, चाहे टैरोट रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, एनर्जी हीलर हो या कोई और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, तो सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की वेलबींग होनी चाहिए। पैसे कमाना गलत नहीं है, हर प्रोफेशन में पैसा इंपॉर्टेंट होता है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स को भी उनके टाइम और एफर्ट के लिए पेमेंट मिलना चाहिए। लेकिन किसी की वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेना ये कभी सही नहीं है और ना ही हो सकता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो एथिकल रहने की वजह से मेरी कमाई थोड़ी कम होती है, लेकिन मुझे ये सैटिस्फैक्शन मिलता है कि मैं लोगों को जेन्युइनली हेल्प कर रही हूँ। मैं उन्हें डिपेंडेंसी में नहीं फंसा रही, बल्कि उन्हें डायरेक्शन दे रही हूँ ताकि वो खुद अपनी हीलिंग की जर्नी पर आगे बढ़ सकें। मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब भी यही है, लोगों को एम्पावर करना, उन्हें उनकी इनर स्ट्रेंथ दिखाना और उन्हें हील होने के लिए डायरेक्शन देना। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास ये माइंडसेट है और मैं दिल से चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो लोगों का एडवांटेज लेते हैं, उनकी वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेते हैं, वो भी एथिक्स, कंपैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉफिट से ऊपर रखें। क्योंकि आखिर में गाइडेंस सिर्फ एक सर्विस नहीं है,
ये एक ट्रस्ट का मैटर है और ट्रस्ट का कभी मिसयूज नहीं होना चाहिए।